ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ PCS, ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, SSC CGL CHSL ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ? ਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਮਾਲਦੀਵਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪਬਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਪਬਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਬਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ RK ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ RK ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਮੁੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ CM ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ। ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ICC ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ। ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ICC ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ICC ਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ? ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ। ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਮਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਏਮਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ EICU ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਮਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ੂਮ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੂਮ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੂਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ। ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੋਦਰਪਣ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਨ ਨੈਵਰ ਡਾਈਜ਼। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਥਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਬੁੱਕਸ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਅ ਨਿਊਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਡਰੋਨਸ। ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ
एक्वायर किए गए हैं, यानी कि इंडियन आर्मी द्वारा लिते गए हैं। कितों लिते गए हैं, बोरो किए गए हैं DRDO द्वारा। DRDO द्वारा एक ड्रोन्स बनाए गए भारत इंडियन आर्मी उसमें यूज़ करेगी किस दे लई, टू एक्यूरेट सर्विलेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, हाई एल्टीट्यूड एरियाज दे विच सर्विलेंस करन दे लई। नैक्सट है एक MOU साइन किया गया CBDT का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स का CBIC दे नाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम दे नाल फॉर डाटा एक्सचेंज। CBDT की गल करिए PC मोदी हैड ने न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। CBIC के हैड M अजीत कुमार ने और न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। अगर आप CBDT की गल करिए, CBDT ने रिसेंटली सेबी के नाल भी सिमिलर तरीके का डाटा एक्सचेंज के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी। उस तो बाद MSME मिनिस्ट्री के नाल और हुण यह एग्रीमेंट इन्होंने CBIC के नाल साइन किया है। वाइस एडमिरल अजीत कुमार कौन ने, वाइस एडमिरल ने इन्होंने इनोग्रेट किया 2 मेगावाट सोलर कैपेसिटी पावर प्लांट, 2 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी पावर प्लांट कित्थे इनोग्रेट किया इन्होंने, नेवल स्टेशन करांजा दे विच इसनूं इनोग्रेट किया गया। किन्ना द्वारा, वैसटर्न कमांड के जिहड़े चीफ ने अजीत कुमार, इन्होंने इसनूं इनोग्रेट किया। नैक्सट है टूरिज्म मिनिस्टर, इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर ने प्रहलाद सिंह पटेल, दामोह मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने, इन्होंने एक वेबीनार अंडर देखो अपना देश सीरीज़ के अंडर इन्होंने एक वेबीनार लॉन्च किया, द मिस्टिकल टैरेंगल माहेश्वर मांडू और ओमकारेश्वर। इस चीज़ के उत्ते एक वेबीनार लॉन्च किया गया। बेसिकली 3 सिटीज़ ने MP दे विच 3 सिटीज़ ने, इन्हां दे उत्ते अगर इन्हां दी कल्चर की गल करिए, कल्चर के उत्ते इन्हां दे वेबीनार लॉन्च किया गया टूरिज्म मिनिस्ट्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। राजस्थान हैज़ स्टार्टेड वन स्टॉप शॉप इनिशिएटिव फॉर फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट, फास्ट ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट नूं फास्ट ट्रैक करन दे लई, जल्दी और ज़्यादा इंक्रीज़ करन दे लई स्टेट दे विच इन्वेस्टमेंट नूं राजस्थान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया वन स्टॉप शॉप। नैक्सट है मैरी ट्रंप द्वारा एक बुक लिखी गई। मैरी ट्रंप बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप USA प्रेजिडेंट, इन्हां दे नीस ने, इन्हां द्वारा टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन, इस बुक नूं लिखा गया मैरी ट्रंप द्वारा। स्टीव वो द्वारा बुक लिखी गई द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, किन्ना द्वारा लिखी गई, स्टीव वो द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन नेवी द्वारा पैसेक्स एक्सरसाइज यानी कि पैसेज एक्सरसाइज किस दे नाल, नेवी एक्सरसाइज है किस दे नाल कंडक्ट की गई, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड दे विच, USA के नाल इसनूं कंडक्ट किया गया बाय USS निमिट्ज, USS निमिट्ज द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया नेवी एक्सरसाइज अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड के उत्ते। और यह सिमिलर पैसेक्स एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस और जापान के नाल भी कंडक्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट है साउथ कोरिया ने अपनी एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया एनासिस सेकेंड नाम की मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट साउथ कोरिया द्वारा लॉन्च की गई विद फाल्कन 9 रॉकेट। अगर आप गल करिए स्पेस एक्स की हैल्प के नाल फाल्कन 9 रॉकेट है जिहड़ा स्पेस एक्स का रॉकेट है, स्पेस एक्स द्वारा डेवलप किया गया है, इस दे नाल मिल के एनासिस 2 नाम की सैटेलाइट साउथ कोरिया ने लॉन्च की। स्पेस एक्स के CEO का नाम याद रखना है एलन मस्क, स्पेस एक्स के CEO ने। हरियाणा हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम किसान मित्र नाम की स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, जिस दे अंडर फार्मर्स ने जिहड़े ओह सोयल की क्रॉप नूं टेस्ट कर सकणगे। बेसिकली किसान मित्र नाम दे कह सकते हैं कि 100 फार्मर्स के उत्ते एक किसान मित्र अपॉइंट किया जाएगा। किसान का मित्र यानी कि किसान का फ्रेंड होएगा जिहड़ा इस तरीके की, अगर आप इसनूं इलैबोरेट करिए तो इस तरीके का एक परसन होएगा जिहड़ा कि उन्होंने हैल्प करेगा उन्होंने क्रॉप नूं टेस्ट करन दे विच और उन्होंने सॉयल टेस्ट करन दे विच, जिस दे अकॉर्डिंग वो सॉयल क्रॉप नूं ग्रो कर सकणगे अपनी फील्ड के उत्ते।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ अगर आप मोनूमेंट्स की गल करिए काफ़ी मोनूमेंट डिस्कस किए हैं हुण आप डिस्कस कर रहे हैं नैशनल मोनूमेंट्स ऑफ कंट्रीज़ पहले आप इंडिया के जोड़े इंपोर्टेंट मोनूमेंट सी उन्होंने डिस्कस किया हुण नैशनल मोनूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्टैचू ऑफ लिबर्टी कित्थे है न्यूयॉर्क USA दे विच न्यूयॉर्क USA दे विच हर एक नूं पता होएगा ईजी है तो इस तो इलावा क्रैमलिन क्रैमलिन कित्थे है क्रैमलिन है मॉस्को रशिया दे विच क्रैमलिन कित्थे है मॉस्को रशिया दे विच ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना दे विच ईजी है एम्पैरिकल प्लेस इंपोर्टेंट होएगा एम्पैरिकल प्लेस कितने पैलेस कितने है टोक्यो जापान दे विच एम्पैरिकल पैलेस टोक्यो जापान आईफल टावर्स पेरिस फ्रांस दे विच आईफल टावर्स पेरिस फ्रांस दे विच लर्निंग टावर ऑफ पीसा कितने है इटली दे विच लर्निंग टावर ऑफ पीसा इटली दे विच ठीक है जी नैक्सट आप चलते हैं अज दे फर्स्ट न्यूज़ दे वल फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि विच ईयर इज़ डिकलेयर्ड एज किहड़े साल नूं डिकलेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय यूनाइटेड नेशनस की गल करिए न्यूयॉर्क के विच हैडक्वार्टर है और इस द्वारा अनाउंसमेंट की गई है इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर किहड़े साल नूं नैक्सट ईयर नूं यानी कि 2021 नूं यूनाइटेड नेशनस द्वारा इस साल नूं डिकलेयर किया गया सिमिलरली 2021 नूं ही FAO द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिस दे नाल चिली और इंडिया ने मिलकर चिली और इंडिया इन्हां दो कंट्रीज़ ने पार्टनरशिप की सी किस दे लई एक मीटिंग हैल्ड करन दे लई किस दे लई ताकि 2021 नूं ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स डिकलेयर किया जा सके FAO का हैडक्वार्टर रोम इटली दे विच है रोम इटली दे विच है चिली कैपिटल सैंटियागो है इस तो इलावा अगर आप कुछ चीज़ डिस्कस करिए अच्छा चिली दे विच COP25 समिट हैल्ड किया जाना सी जिसनों बेसिकली बाद दे विच पोस्टपोन करके स्पेन दे मैड्रिड दे विच हैल्ड किया गया स्पेन दे मैड्रिड दे विच यह समिट हैल्ड किया गया ये याद रखना नेक्स्ट है इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड देयर फ्लाइट टेस्ट 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र फॉर द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ओडिशा न्यूज़ की है कि इंडिया द्वारा एक मिसाइल नूं डेवलप किया गया इंडिया द्वारा मिसाइल नूं डेवलप किया गया तो उस तो बाद उसनूं टेस्ट किया गया हुण जिहड़ी मिसाइल है उसनूं हैलीना कहा जाता वैसे तो हैलीना का मतलब है अगर शॉर्ट फॉर्म दे विच हैलीना का मतलब है कि हैलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की जा सकी जिहड़ी नाग मिसाइल नाग एक मिसाइल है जिसके कई पार्ट्स ने जिसनों डिफरेंट पार्ट्स ने जिसनों हैलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च किया जा सकता है एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किया जा सकता है अर्थ तो लॉन्च किया जा सकता है तो जी नाग मिसाइल है वो बेसिकली किस दे विच आंदी है कि जिस जी ऑटोमैटिकली ट्रैवल करती है यानी कि अगर एक स्पेसशिप उसके अगे जा रहा है उसके उत्ते टारगेट किया गया है अगर वो अपना रस्ता बदलता है तो वो मिसाइल भी अपना रस्ता बदलती है ठीक है इस तरीके की जी मिसाइल है इसनों डेवलप किया गया ध्रुवास्त्र जिसका नाम रखा गया ध्रुवास्त्र टेस्ट किया गया चंदीपुर उड़ीसा के चंदीपुर उड़ीसा के इसनों टेस्ट किया गया डेवलप किया गया DRDO द्वारा किस द्वारा इसनों डेवलप किया गया DRDO द्वारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्स आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं 1958 के इसनों बनाया गया सी न्यू दिल्ली के हैडक्वार्टर है और G सतीश रेड्डी इसके हैड ने इसरो के फैक्ट्स भी आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं 1969 के बनाया गया सी करनाटका बेंगलुरु के हैडक्वार्टर है और K सिवान इसके हैड ने अच्छा रीसेंटली K सिवान को एक अवार्ड दिता गया रीसेंटली K सिवान जोड़े इसरो के हैड ने इन्हों अवार्ड दिता गया इंटरनेशनल अकैडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा इंटरनेशनल अकैडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा एक अवार्ड दिता गया उस अवार्ड का नाम कमेंट बॉक्स में दसना ठीक है जी भेल भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका हैडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के विच है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसका हैडक्वार्टर बेंगलोर के विच भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हैडक्वार्टर कित्थे है बेंगलोर के विच ये याद रखना नैक्सट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग परसनस नेम एम्पलॉयज़ वेलफेयर स्कीम एक एम्पलॉयज़ वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है राज्य सभा के विच बेसिकली राज्य सभा सैकटरीएट है जी उसके एम्पलॉयज़ के लिए उसके एम्पलॉयज़ और स्पैशली C कैटेगरी के एम्पलॉयज़
सी कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਰਕ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈंने ऐसे ਲੀਡਰਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫॉर ਗਰੁੱਪ ਸੀ EMPLOYEES। ਗਰੁੱਪ ਸੀ EMPLOYEES ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ EMPLOYEES ਦੀ ਡੈਥ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲੇਮਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲਥ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੇਮਸ ਡੈਥ ਕਲੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। MP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਨ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਫ 7.8 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਫ 7.8 magnitude hit at the coast of which of the following country recently? 7.8 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती अपने लिए ये न्यूज़, पर ये मैंने इसलिए डिस्कस कर रहे हैं भी ताकि इस दे बारे भी आप स्किप ना कर दिए। अलास्का एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होंगे कि वो किस दे उत्ते क्वेश्चन पूछ ले। तो अलास्का एक कंट्री है, बेसिकली USA का पार्ट है। अगर आप गल करिए USA ਨੂੰ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि इस 50 स्टेट्स ने जिन्होंने ज्वाइन करके USA बनाया गया। ठीक है, तो उस एक है अलास्का ऐसा USA का पार्ट है जोड़ा कि एरिया वाइज सब तो ज़्यादा बड़ा है। USA अगर आप गल करिए इस तरीके जो कॉन्टीनेंट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टीनेंट का सब तो उत्ते जो पार्ट है उसनों अलास्का कहा जाता है। ठीक है, USA का पार्ट है अलास्का, याद रखना। 7.8 मैगनीट्यूड का ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ ਹਿੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 9.4 ਸਮਥਿੰਗ ਅਰਥਕੁਏਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਸੀ। ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, 77 ਤੋਂ 63 ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ चलो हजे स्किप करते हैं। इतने आस्ट्रेलिया के रिलेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हमेशा याद रखना। इंडिया ने 9 एग्रीमेंट साइन किए थे आस्ट्रेलिया के नाल, जिस दे विचों सब तो इंपोर्टेंट सीगा लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। नैक्सट है हू हैज़ अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर का एक स्टैचू रिवील किया गया कैग ऑफिस दे विच। कैग ऑफिस कित्थे है? न्यू दिल्ली। कैग ऑफिस यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इस जी पोस्ट है, इस पोस्ट का जोड़ा ऑफिस है यानी कि कैग CAG का जोड़ा ऑफिस है न्यू दिल्ली के विच है हैडक्वार्टर। और इत्थे एक डॉक्टर BR अंबेडकर का एक स्टैचू रिवील किया गया। किसने किया इसनूं? वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा इसनूं रिवील किया गया। किन्ना द्वारा? वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए बाकी ऑप्शनस दे विच कैग की गल करिए, राजीव महरिषि इंडिया के कैग ने। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया के कौन ने? राजीव महरिषि। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गवर्नर ने अनिल बेजल। दिल्ली के गवर्नर ने और चीफ मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल, ये याद रखने ने। रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेजिडेंट ने। राजीव महरिषि अपना नाम डिस्कस कर लिया, इंडिया के कैग ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए दिल्ली की कुछ स्कीम्स की, तो 5G प्रोग्राम दिल्ली के लॉन्च किया गया सी। इस तो इलावा ऑपरेशन
ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया गया सी। नेक्स्ट है हु हैज़ कमीशनड अ लार्जेस्ट 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट इंडियन नेवल अकेडमी एज़हीमाला ऑफ साउदर्न नेवल कमांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। आप कल एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया गया, ठीक है। डिस्कस किया आपने वो किन्ना ने किया सी, अजीत कुमार ने। अजीत कुमार वैसटर्न कमांड के चीफ सीगे, वैसटर्न कमांड के चीफ सीगे और इन्हों द्वारा इनोग्रेट किया गया। और बेसिकली अगर आप गल करिए कित्थे किया गया सी, मेरे माइंड चो स्किप कर रहा, हुणे आपां डिस्कस किया सी करांजा, इंडियन नेवल स्टेशन करांजा, ठीक है। और हुण यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है अपने लिए, उसनों अगर आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। ये अपने लिए क्यों इंपोर्टेंट होएगा, क्योंकि यह लार्जेस्ट हो जाएगा किसी नेवल कमांड के उत्ते। एक नेवल कमांड के उत्ते सब तो ज़्यादा बड़ा जिहड़ा मैगावाट सोलर प्लांट है वह है 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंडियन नेवल अकेडमी एज़हीमाला के उत्ते लॉन्च किया गया अनिल कुमार चावला द्वारा। अनिल कुमार चावला साउदर्न कमांड के चीफ ने, साउदर्न नेवल कमांड के चीफ ने अनिल कुमार चावला, इन्हों द्वारा 3 मेगावाट का यह सोलर पावर प्लांट लगाया गया, ठीक है जी। MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने इंडियन आर्मी के चीफ ने, इंडियन आर्मी के चीफ ने मनोज मुकुंद नरवाने। RK सिंह भदौरिया, RK सिंह भदौरिया यह ने एयर फोर्स के चीफ, एयर फोर्स के चीफ। और करणबीर सिंह ने नेवी के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ ने करणबीर सिंह, एयरफोर्स के RK सिंह भदौरिया और मनोज मुकुंद नरवाने इंडियन आर्मी चीफ ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी विद अ प्राइज मनी ऑफ 1 मिलियन यूरोस, 1.15 मिलियन डॉलर्स। 1 मिलियन यूरोस की प्राइज मनी के नाल, यानी कि 1.15 मिलियन डॉलर्स की प्राइज मनी के नाल गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किन्ना ने जीते? गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी जीते है ग्रेटा थनबर्ग ने। सो याद होएगा बेसिकली काफ़ी छोटी एज की लड़की, फीमेल लड़की है, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग। तुम चाहो तो इन्हों का नाम गूगल करके देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग। इन्होंने UN यूनाइटेड नेशनस के भी स्पीच दी थी इन्होंने एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ठीक है जी। इस करके इन्हों गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिता गया ग्रेटा थनबर्ग नूं, ग्रेटा थनबर्ग नूं। कित्थों बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं स्वीडन तो बिलोंग करते हैं, स्वीडिश लड़की है, यानी कि स्वीडन कंट्री तो बिलोंग करते हैं। स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम है, स्वीडन कैपिटल की है स्टॉकहोम, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस की, बाकी ऑप्शनस के एक नाम है अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी बेसिकली इन्होंने भी एक अवार्ड दिता गया टून्स मीडिया अवार्ड, टून्स मीडिया अवार्ड, टून्स मीडिया अवार्ड। अगर आप गल करिए एनीमेशन एनीमेटेड मूवीज़ की, तो एनीमेशन के लिए इन्होंने एक अवार्ड दिता गया अर्नब चौधरी नूं, टून्स मीडिया अवार्ड। इन्हों की एक मूवी सी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, जिसनों ऑस्कर्स लिए भी नॉमिनेट किया गया सी, काफ़ी इंपोर्टेंट है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। इस दे लई इन्हों टून्स मीडिया अवार्ड दिता गया, टून्स मीडिया अवार्ड दिता गया, याद रखना। इस तो इलावा केजांग दी थोंगडोक, केजांग दी थोंगडोक नूं भी रिसेंटली इन्हों का नाम आप डिस्कस कर चुके हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन्हों दिता गया सी केजांग दी थोंगडोक, केजांग दी थोंगडोक नूं। अरुणाचल प्रदेश तो ये बिलोंग करते हैं। N चंद्रशेखरन टाटा के CEO ने, टाटा के CEO ने, और जिम टेकलेट CEO सीगे लॉकहीड मार्टिन दे, लॉकहीड मार्टिन के CEO सीगे जिम टेकलेट। इन्होंने दोनों को मिलकर एक अवार्ड दिता गया सी। इन्होंने दोनों को केड़ा अवार्ड दिता गया सी? USIBC, USIBC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किन्ना दिता गया? N चंद्रशेखरन और जिम टेकलेट, दोनों CEO ने, एक टाटा CEO टाटा दे ने और दूसरे लॉकहीड मार्टिन दे, ठीक है जी, याद रखने ने। नेक्स्ट है नेशनल डॉप टेस्टिंग लैबोरेटरी, नेशनल डॉप टेस्टिंग लैबोरेटरी
इसनूं सस्पेंड किया गया सी बेसिकली वाडा द्वारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हैडकुआटर मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच है। मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच वाडा का हैडकुआटर है। इसने पहले इसनूं सस्पेंड किया सी, हुण इसकी सस्पेंशन नूं 6 महीने के लिए इंक्रीज़ किया गया, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है सस्पेंशन ऑफ नैशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी। ठीक है जी, ये याद रखनी है। अपने लिए क्वेश्चन है कि नैशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी का हैडकुआटर कित्थे है? दिल्ली दे विच। फर्स्ट ऑप्शन, नैशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी का हैडकुआटर कित्थे है? दिल्ली दे विच। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इंडिया की डोपिंग एजेंसी नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। इस तो इलावा इसके जोड़े हैड ने इन्हों के नवीन अग्रवाल नाडा के हैड ने सुनील शेट्टी नाडा के एंबेसडर ने। नाडा के एंबेसडर कौन ने? सुनील शेट्टी। लखनऊ कित्थे है? यूपी दे विच। लखनऊ दे विच डिफेंस एक्सपो हेल्ड किया गया सी। डिफेंस एक्सपो का 11th एडिशन हेल्ड किया गया सी लखनऊ दे विच। गुजरात दे विच है गांधीनगर गुजरात का फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बने सी। कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बने सी गांधीनगर दे विच COP 13 कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई सी। COP 13 कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई सी, जिसका मैस्कोट सीगा रूबी गोला नहीं गिबी सीगा मैस्कोट COP 13 का। रूबी गोला तो नैशनल गेम्स का मैस्कोट है, जिसनों हेल्ड किया जाएगा गोवा दे विच। रूबी गोला नैशनल गेम्स का मैस्कोट है, जिसनों हेल्ड किया जाएगा गोवा दे विच। गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड COP 13 का मैस्कोट रहा सी। हैदराबाद तेलंगाना दे विच है। इत्थे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर ओपन किया गया सी। मुंबई की गल करिए, मुंबई ने टैप वाटर रैंकिंग्स नूं टॉप किया सी। टैप वाटर रैंकिंग्स नूं किहड़ी कंट्री द्वारा टॉप किया गया सी? सॉरी किहड़ी स्टेट द्वारा? मुंबई द्वारा। किहड़ी सिटी? मुंबई। इस तो इलावा मुंबई नूं यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज़ नैटवर्क की लिस्ट दे विच ऐड किया गया सी इन द फील्ड ऑफ फिल्म की कैटेगरी दे विच ऐड किया गया सी। हैदराबाद नूं भी इस दे विच ऐड किया गया सी इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनोमी याद रखना। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च PNB नेशनवाइड CDR कैंपेन टू COVID-19 पैंडेमिक। पंजाब नैशनल बैंक का एक नेशनवाइड CDR कैंपेन लॉन्च किया गया COVID-19 पैंडेमिक नूं टैकल करने के लिए, टू फाइट COVID-19। इहदे फाइट लिखना रह गया होगा, टू फाइट COVID-19 पैंडेमिक। किन्हां द्वारा लॉन्च किया गया? हैल्थ मिनिस्टर, इंडिया के हैल्थ मिनिस्टर अगर आप गल करिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस तो इलावा साइंस एंड टैक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्टर ने चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हों द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। अगर आप PNB की गल करिए पंजाब नैशनल बैंक की, तो इसके हैड ने SS मल्लिका अर्जुन राव PNB के हैड ने। पंजाब नैशनल बैंक के हैड कौन ने? SS मल्लिका अर्जुन राव। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर ने। इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कह सकते हैं, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने लवे रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। रामविलास पासवान फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री इन्होंने लवे, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है। स्मृति ईरानी की गल करिए टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री इन्होंने लवे, टैक्सटाइल्स और WCD मिनिस्ट्री है अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। टैक्सटाइल्स और WCD मिनिस्ट्री है अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है अरुण कुमार कौन ने? अरुण कुमार बेसिकली DG ने, डायरैक्टर जनरल ने RPF दे। रेलवे पुलिस फोर्स के डायरैक्टर जनरल ने इन्होंने नॉमिनेट किया गया एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अगर आप गल करिए हर एक स्टेट के हर एक कंट्री के रेलवे है, तो उन्होंने कंट्रीज की जी रेलवेज है उन्होंने एक यूनीयन है जिसका हैडकुआटर कित्थे है। अपना क्वेश्चन तो बेसिकली यही है कि इसका हैडकुआटर कित्थे है, तो उसकी जी यूनीयन है उसकी 96वीं जनरल मीटिंग हेल्ड की गई, 96th जनरल असैंबली की मीटिंग हेल्ड की गई। तो उसदे विच जिहड़ा एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है उन्होंने उसके वाइस चेयरमैन इंडिया के जोड़े RPF के डायरैक्टर जनरल ने अरुण कुमार उन्होंने अपॉइंट किया गया।
ठीक है। बेसिकली इन्हां दी अपॉइंटमेंट जुलाई 2020 तो जुलाई 2022 तक की गई है, ठीक है। और इसका हैडकुआटर है पैरिस दे विच। हैडकुआटर कित्थे है? पैरिस फ्रांस दे विच। 96 जनरल असैंबली दे विच इसनूं डिसीजन लिता गया। प्लस ये भी याद रखना है इन्हों जुलाई 2022 तक तो इन्हों की बनाया गया है, 22 तो 2024 इन्हों चेयरमैन भी बनाया जाएगा, ठीक है। हजे इन्हों वाइस चेयरमैन बनाया गया 2022 तक और उस तो बाद इन्हों चेयरमैन बनाया जाएगा 2024 तक। 2 सालों के चेयरमैन भी रहेंगे, ठीक है जी। ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर न्यूयॉर्क की गल करिए, यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए हैडकुआटर यूनीसेफ का हैडकुआटर भी न्यूयॉर्क दे विच है और काफ़ी यूनाइटेड नेशनस की जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसका हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। वाशिंगटन दे विच वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर है। वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर कित्थे? वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? वाशिंगटन DC दे विच। IMF का हैडकुआटर कित्थे है? वाशिंगटन DC दे विच। पैरिस दे विच यूनीसेफ का यूनेस्को का हैडकुआटर है। यूनेस्को का हैडकुआटर कित्थे है? पैरिस दे विच। मनीला दे विच ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? मनीला। बीजिंग NDB का हैडकुआटर बीजिंग चाइना दे विच है। NDB का हैडकुआटर कित्थे है? बीजिंग चाइना दे विच। याद रखना है। सॉरी NDB का हैडकुआटर शंघाई दे विच है। बीजिंग दे विच AIIB का हैडकुआटर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग दे विच हैडकुआटर है। नेक्स्ट है फार्म पे। फार्म पे लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड विद विच बैंक। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा ये कि फैम पे जिहड़ा एक बेसिकली अगर आप गल करिए इंडिया का पहला ऐसा बैंक बनेगा जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है, यानी कि कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शनस की जाएंगियां और इन्होंने पहला नंबरलैस कार्ड अपॉइंट किया। अगर आप गल करिए अपने डेबिट कार्ड होंगे ने, क्रेडिट कार्ड होंगे ने, उन्होंने उत्ते कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होंगे ने, ठीक है। डिफरेंट तरीके के 16 आई थिंक 16 या 12 अक्षरों का एक नंबर होंगे वो लिखे होंगे ने और ये इन्होंने की किया नंबरलैस, यानी कि उसके उत्ते कोई भी नंबर नहीं होएगा। एक ऐसा कार्ड लॉन्च किया है किहड़े बैंक के नाल मिलके? IDFC बैंक के नाल मिलके। IDFC बैंक के नाल मिलके इसनूं लॉन्च किया गया। IDFC बैंक के नाल मिलके इसनूं लॉन्च किया गया। अच्छा, IDFC फर्स्ट बैंक के एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी अमिताभ बच्चन। ये भी याद रखना है। IDFC फर्स्ट बैंक के एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए ने? अमिताभ बच्चन। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इस दे विच की होएगा? इस दे विच होएगा कि जिहड़े पेरेंट्स ने वो अपने बच्चों नूं अमाउंट ट्रांसफर कर सकणगे और बच्चे उस जिहड़े बेसिकली 18 तो घट दे ने तो उन्होंने किसी भी अकाउंट की जरूरत नहीं होएगी और सिंगल इस कार्ड के नाल ही सारा कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकणगे, ठीक है जी। याद रखना है। इस तो इलावा बाकी जिहड़े ऑप्शंस ने हर एक रिलेटेड एक न्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। सब तो पहले करूर व्यवसाय बैंक। करूर व्यवसाय बैंक करूर तमिलनाडु के विच हैडकुआटर है और करूर व्यवसाय बैंक ने की किया? करूर व्यवसाय बैंक के MD अपॉइंट किए गए, नवे MD अपॉइंट किए गए ने रमेश बाबू। रमेश बाबू करूर व्यवसाय बैंक के MD अपॉइंट किए गए ने तमिलनाडु, करूर तमिलनाडु के विच इसका हैडकुआटर है, ठीक है जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने LIC के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। LIC और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिलके की करेगा? बेसिकली जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है यह LIC की जी पॉलिसीज़ ने इन्हों बेचेगा। LIC ने इस पार्टनरशिप की कि जी LIC की पॉलिसीज़ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स नूं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बेचेगा, ठीक है। याद रखना है। अच्छा, LIC बारे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1956 के विच बनाया गया सी न्यू दिल्ली के विच, सॉरी मुंबई के विच हैडकुआटर है और MR कुमार इस दे हैड ने। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गल करिए इसका हैडकुआटर मुंबई के विच है। इसनूं 1990 के विच बनाया गया सी। 1919 के विच इसनूं बनाया गया सी। बैंक ऑफ बड़ौदा की गल करिए इसने लॉन्च किया है इंस्टा सेविंग अकाउंट। इंस्टेंट क्लिक सेविंग अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट ओपन किया गया है जिहड़ा 100% डिजिटल यानी कि बिल्कुल पेपरलैस अकाउंट होएगा और ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। बिल्कुल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, पेपरलैस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की गल करिए 1908 दे विच सब तो पहला बैंक मन्निया जाता है। 1908 दे विच बनाया गया सी। संजीव चड्डा इसके हैड ने और इसका हैडकुआटर गुजरात दे विच है। वडोदरा गुजरात दे वडोदरा दे विच इसका हैडकुआटर है। SBI की गल करिए SBI दे आपां
ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ SBI ਕਾਰਡਸ ਦੇ MD ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ MD ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕੰਡਪਾਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕੰਡਪਾਲ SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ MD ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 1 ਸਟੈਪ ਫਿਨਟੈਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, यानी कि एक सिंगल स्टैप पेमेंट सोल्यूशन। बेसिकली यह चीज़ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NPCI ਦੁਆਰਾ। NPCI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਦਿਲੀਪ ਆਸਬੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ UPI ऑटो पे नाम का एक डिजिटल सोल्यूशन बनाया गया। बेसिकली अगर आप गल करिए कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंदियां ने जिन्हें आपने बार बार करना होंगे, ठीक है, उन्होंने लिए आपको की होंगे अकाउंट नंबर वगैरह IFSC कोड बार बार रिपीटली भरना पैंदा है। तो उन्होंने चीज़ों को ईजी करने के लिए बनाया गया UPI ऑटो पे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ लिता गया किश्तों के उत्ते लिया तो हर महीने उसकी किश्त भरनी अपने इंस्टॉलमेंट्स हर महीने भरनिया पैणगियां। तो उस चीज़ के लिए आपने UPI ऑटो पे के अंडर एक अमाउंट सैट करती कि हर मंथ इन्नी अमाउंट उसनू दे दी जाए। ठीक है, जब तक आप उसनू कैंसल नहीं करांगे ये अमाउंट उसनू दे दी जाएगी। हालांकि इसनू इसकी लिमिट रखी गई है 2000 तक की। 2000 तक की ऑटो डिडक्शन है, प्लस अगर 2000 प्लस डिडक्शन करनी है तो उसके लिए सिर्फ एक पिन रिक्वायर्ड होएगा जो आप इसनू सैटअप करांगे। ठीक है, काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि UPI ऑटो पे नाम का सोल्यूशन किसने बनाया है? NPCI ने, नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इस तो इलावा NPCI के फैक्ट्स इंपोर्टेंट बन गए 2008 मुंबई के और दिलीप आसपे। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ MOU विद IIT रोपड़ इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट दे नाल IIT रोपड़ ने एग्रीमेंट साइन किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए? किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट दे नाल? पंजाब दे नाल। पंजाब गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है IIT रोपड़ दे नाल फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा न्यूज़ डिस्कस करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश ने अमूल दे नाल पार्टनरशिप की है फॉर वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स दी हैल्प करने के लिए अमूल दे नाल पार्टनरशिप की है ताकि मिल्क कोऑपरेटिव्स ने उन्होंने जी इनकम है उसनू इंक्रीज़ किया जा सके। वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स की हैल्प की जा सके। ठीक है जी। प्लस अगर एक न्यूज़ आप हरियाणा बारे डिस्कस कर लें। हरियाणा ने की किया एक पोर्टल लॉन्च किया ई-सचिवालय। यानी कि बेसिकली अगर सचिव की होंगे सैक्रटरी होंगे ने। ठीक है, यानी कि जेडे CM के सैक्रटरी हो गए, डिप्टी CM के सैक्रटरी हो गए, या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जोड़े सैक्रटरी अपॉइंट किए जाते हैं उन्होंने अपॉइंटमेंट्स के लिए उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया ई-सचिवालय। ठीक है, इस तो इलावा हरियाणा ने प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी पोर्टल को लॉन्च किया है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है जी। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पुराने फैक्ट्स डिस्कस कर लें। स्नो लियोपर्ड कंजरवेशन सेंटर गंगोत्री नैशनल पार्क के स्नो लियोपर्ड कंजरवेशन सेंटर कित्थे बनाया जा रहा है? गंगोत्री नैशनल पार्क के उत्तराखंड के ऋषिकेश के ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज। झारखंड की गल करिए, कुछ स्कीम्स की गल कर लें। श्रमिक पोर्टल झारखंड द्वारा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि स्कीम कित्थे लॉन्च की गई सी? झारखंड द्वारा। इस तो इलावा एक स्कीम होर सी मेरे माइंड चो स्किप कर रही है जो आप किसी होर दिन डिस्कस करांगे। ठीक है जी, ये स्कीम्स याद रखने ने झारखंड दियाँ। इस तो इलावा अगर आप गल करिए कोई होर चीज़ आंध्र प्रदेश के YSR नेथनम नेस्टम स्कीम
ਜਗन्नाथ ਚੇਦੋਦੂ ਸਕੀਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨਾਡੂ ਨੇਡੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग द ਸੈਸ਼ਨ। गुड बाय।